Yeah, good morning, Sankalp, Sharad ji, Kshitij, Karthik, and Pallavi on the other side. Can you all hear me? Yes, we can hear you. Very good morning, Prashant ji. Yes, हाँ sir. जी, शरद जी, Clear. good morning, योगेश योगेश जी called me also about you. And I think ये क्या नाम है, मैंने सिर्फ WhatsApp status पे डाला था. That's why the attendance is like abysmally low today. But hopefully, once we will start sharing such these flyers on other platforms, the attendance will increase later on. तो आज तो I Good think morning, sir. Hello. हाँ जी, good morning Kshitij. So let us see, gradually more people may join. I was just waiting for, took these additional 8 minutes, just waiting for other people who had requested for the link. Anyways, let's start with this thing. Legal guide to purchase real estate property in Noida, Greater Noida, and Yamuna Expressway. So, first of all, the question would be coming that why these three tri cities have been, included in this webinar, and what is the peculiarity about the, peculiarity with respect to having a specific guide for purchasing property in these cities. So, yeah, I'm using these tools today. So I was just thinking, why this topic should be covered. So I could come with these three things. First is, that this will create an awareness amongst the home buyers with respect to the law, that what are the laws that regulate the housing sector or the real estate sector in these cities. And once you are aware about these rights or the laws under which the developer is developing the project and under which you are also purchasing your property, so once you are aware about these things, I nobody can take you for. Good morning, Yogesh ji. Anyways, so once you are aware about your rights, once you are aware about the law, nobody can take you for granted or can take you for a ride by giving you wrong information just to have your investment invested with them or through them. So once you are aware about the law, you can take an informed decision, and you can also take timely remedies available under the law. Timely remedies means that once there is any wrong that is being committed during the performance of the various obligations by different parties, then you can take a remedy. The second aspect was the problems. So problems are that, these regulations or the law does not provide any regulations how to regulate or punish the agents who are the middleman in, offering you a property, making the deal done, and all other aspects. And other problem is that once you are there in the market to purchase a property, the agent or the builder will say that every property that he will show you will be the best and the last property, और अगर आपने ये मौका आज छोड़ दिया खरीदने से तो कल आप नहीं खरीद पाएंगे. तो रियल एस्टेट में अक्सर जो सेल्स होती हैं वो बहुत हड़बड़ी में लोग कर देते हैं, या जो लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि रेट बहुत तेज बढ़ रहा है जल्दी से इन्वेस्ट करा दो, या फिर ये मौका, या हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट है और आज आप इन्वेस्ट कर दीजिए और फिर बाकी चीजें आपको हम कल शो कर देंगे. तो इस बीच में जो लीगल राइट्स होते हैं लोगों के, उनको देखना, समझना, पेपर्स को पढ़ना, एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना से लोगों को रोका भी जाता है, और लोग कहीं ना कहीं इस बहकावे में भी आ जाते हैं कि ये लास्ट प्रॉपर्टी हो सकती है, शायद बेस्ट और लास्ट, और वो जल्दी से उसमें पैसा अपना लगा देते हैं. पर अगर आपके पास सारी लॉ की इंफॉर्मेशन होगी तो आप शायद इन प्रॉब्लम से बच सकें. तीसरा इशू है अनसर्टिनिटी. क्या अगर लॉ के बारे में आपको पता है तो क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट की टाइमली डिलीवर होगी, और अगर टाइमली नहीं चल रहा है तो अगर टाइमली डिलीवरी नहीं हो पा रहा. राजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग.
अगर टाइमली डिलीवरी नहीं हो रहा है या प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं चल रहा है, तो बीइंग अ बायर हाउ कैन यू एंश्योर कि आप आगे चल करके उस प्रोजेक्ट में बाय योर इंटरफेरेंस यू कैन एंश्योर कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वापस मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट और ऑफ योर यूनिट, या फिर इन इन योर बैंक अकाउंट। अब एक सिंपल सा टॉपिक मतलब इशू है, दो दिस इज नॉट लीगल, बट लोग क्यों प्रॉपर्टी खरीदते हैं? व्हाई परचेज अ रियल एस्टेट? सेल्फ यूज के लिए लोग खरीदते हैं ताकि वो फ्यूचर में उसमें आराम से रह सके, कल को अगर इनकम कम होती है तो भी उनके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कि आज खरीदा, बिल्डिंग बनने तक या कल जब मार्केट राइज होगा तो प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जा सकता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा। और third may be regular generation of regular income by means of keeping the property further on lease or on rent or by other means, जैसे भी आजकल ट्रस्ट फॉर्मेशन करके भी शेयर प्रॉपर्टीज को शेयर किया जाता है और उससे रेंटल इनकम लेते हैं, खासकर आईटी आईटीएस बिल्डिंग्स मॉल्स एक्सेट्रा इन सब प्रॉपर्टीज में। अब नोएडा को ही क्यों मैंने लिया? लीगल पिक्यूलरिटी रिगार्डिंग नोएडा एंड हर सिस्टर्स, मतलब कि ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे। तो ये जो सिटी है, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लीज का, बिकॉज यहाँ पर वट एवर प्रॉपर्टीज आर हियर दे आर अवेलेबल ऑन लीज। अब लीज क्या होता है? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट। So lease is a concept where you are, or a person who is taking the property on lease is given right to enjoyment of that property for a limited period of time as per the agreement. अब जब आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे इन सिस्टर सिटीज में, तो आपको ये 90 years, around 90 years, 90 years, for 90 years you will get the property for enjoyment. और ये 90 ईयर से भी कम हो सकता है, बिकॉज द प्रॉपर्टी इफ यू आर परचेजिंग फ्रॉम बिल्डर और अ सेकंड हैंड प्रॉपर्टी इन रीसेल, तो ये 90 ईयर्स माइनस जितना पहले यूज कर चुका है एक्चुअल अलॉटी ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सो लेट अस से बिल्डर ने दिया था 2011 में लैंड को लीज के बेसिस पे, और वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर हो रही है इसके, तो आपके पास एंजॉयमेंट राइट उसका बचता है 90 माइनस 10 ईयर्स, 80 ईयर्स के लिए। So whatever money you are putting for that house or on particular property, that is limited for 80 years. अब आप पूछेंगे 80 years के बाद क्या होगा उसका? तो 80 years के बाद जो भी उस लैंड की प्राइस होगी, जो नोएडा ने जिस प्राइस पे बिल्डर को दिया था या पिछले ओनर को दिया था, वो 80 years के बाद प्राइस को रिवाइज करके उस समय के रेट्स में ऑप्शन है उसके पास, या तो आपको ही बेचना चाहे या फिर अपने मन में चेंजेस करते हुए उस जगह पर कुछ और बनाने की बात करें, और इसके पास राइट होगा हमें आपको बेदखल करने का उस लैंड से जिसने भी वो लैंड को खरीदा है। तो अब यहाँ पर लीज की बात आती है, तो लीज किसने दिया? लीज दिया नोएडा अथॉरिटी या फिर उसकी जो भी सिस्टर सिटीज और वहाँ की अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या फिर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। और once they have the power or the control over the land, that means they are a permanent real owner of that land। और वहाँ पे जो भी पॉलिसीज चलेंगी, बिल्डिंग कैसे डेवलप होना है, कंस्ट्रक्शन कैसे देना है, ऑक्यूपेंसी क्या होगी, ये सब कुछ फॉर ऑल टाइम्स टू कम वो रेगुलेट करेंगे, और हम वहाँ पर रहेंगे एज अ सब लेसेसर ऑफ द लैंड। अब अगला क्वेश्चन है कि ये लीज का राइट हमारे पास कैसे आता है? तो इसके लिए नोएडा अथॉरिटी पहले जो भी कोल्ड लैंड है जो कि किसानों के पास होती है उसको एक्वायर करती है, चाहे खुद से या गवर्नमेंट करती उसको एक्वायर करती है, और फिर वो लैंड दे दी जाती है नोएडा अथॉरिटी को या फिर जो भी बाकी अथॉरिटीज है, अथॉरिटी वाली यूज करता हूँ दैट विल बी फॉर ऑल अथॉरिटीज। अथॉरिटी गेट द लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज पर मास्टर प्लान, इसका जो भी मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लॉटिंग करती है, और उन प्लॉट्स को ऑक्शन में ले जाकर फिर उसको अगले डेवलपर या डेवलपर सेक्टर में प्लॉट्स छोटे 100 स्क्वायर मीटर 200 के प्लॉट उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके और उसको लीज पर लीज पर अलॉट कर लिया। लीज है ज्यादातर
कुछ नहीं पता। वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल बात करें चार्ज जब लिया जाता है, यहाँ पर वादे किए जाते हैं, उसको उसमें यही होता है कि हम ये स्ट्रक्चर को खत्म करके फ्री होल्डिंग लेकर आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर, तो हम डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेशन या फिर कौन से लॉज हैं जो यहाँ पर आपके घर को रेगुलेट करेंगे, मतलब जिसके अंदर आपका प्रॉपर्टी बराबर हो सकती है। तो सबसे पहले तो यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट है, जिसके अंदर अथॉरिटी लैंड को एक्वायर करती है या फिर लैंड को डेवलपमेंट के लिए देती है, एक्वायर कर देती है, और इसी के अंदर जो मास्टर प्लान को बनाया जाता है और उस मास्टर प्लान के अंदर कहाँ पर क्या फैसिलिटीज रखी जाएगी, इन सब चीजों का निर्धारण किया जाता है। और दीज थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय द डिजाइन। एक बार लैंड जब अलॉट की जाएगी एंड यूजर को, जो कि उसको चाहे बिल्डर हो या फिर हमारे और आप जैसे इंडिविजुअल प्लॉट बायर्स हो, मतलब सेक्टर जो होते हैं कोठी वगैरह बनाने के लिए, इसके ऊपर इन्होंने बना रखा है बिल्डिंग रेगुलेशंस, जिसमें वाटर बिल्डिंग रेगुलेशन, ग्रेटर वाटर बिल्डिंग रेगुलेशन के अंतर्गत बिल्डिंग मैप को सैंक्शन करना पड़ता है। बिल्डिंग मैप का सैंक्शन का मतलब है किस किस तरीके से बिल्डिंग क्या क्या हाइट रख सकते हैं, कितने एरिया में आप बिल्डिंग बना सकते हैं, कि 40% ओपन एरिया रखना है, लैंड के अनुपात में, यानी लैंड के रेशियो में हाउ मच कैन बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। जैसे 2000 स्क्वायर मीटर का लैंड है, उसके ऊपर अमूमन 2.5 रेशियो दिया जाता है, यानी कि 1000 के ऊपर 2500 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसको आमतौर पे एफएआर कहते हैं, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी बोलते हैं, एफएसआई या फिर एफएआर। तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, क्या ग्रीनरी होगा, क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, क्या क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्लॉट साइज, ये सब कुछ हमको यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट और इसके अंदर बनाया गया नोएडा जो बिल्डिंग रेगुलेशन है उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया अथॉरिटी से रिलेटेड लॉ। अब जब घर बनना शुरू होगा तो रिलेशनशिप डेवलप होगा किसके बीच में, जिसने लैंड लिया है, यानी कि प्रमोटर और एंड यूजर जो कि घर को परचेज करेगा। इसको रेगुलेट करने के लिए, बिल्डर बायर रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में बनाया गया, जिसके अंदर बिल्डर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और बायर से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर ये दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में किसी तरीके से दे मेक अ डिफॉल्ट, then what would be the remedy and how that remedy can be availed, इन सब चीजों के बारे में इस लॉ में प्रोविजन दिए गए हैं। फिर एक नेक्स्ट एक्ट आता है यूपी अपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये डील करता है कॉमन एरियाज से उसके मेंटेनेंस को लेकर के, और बिल्डर बायर के भी रिलेशन को रेगुलेट करता है उन जगहों पर जहां पर कि रियल एस्टेट एक्ट यानी कि जो रेरा एक्ट है वो साइलेंट है, जो चीजें उसमें कवर्ड नहीं है वहां पर ये यूपी अपार्टमेंट एक्ट भी लागू होता है। तो कैसे मेंटेनेंस होगा, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन कैसे बनेंगे, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये भी चीजें यहाँ पर इस एक्ट में प्रोवाइड की गई हैं। श्री राजेंद्र सिंह वर्मा ने ज्वाइन किया, तो मुझे एक और इसमें एक्ट की बात करनी पड़ेगी, यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो बहुत सारी सोसाइटीज जैसे आप देखते होंगे सेक्टर 62, 50 इन सब जगहों पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं ये अपने आप में प्रमोटर का ही रोल अदा करती हैं एज पर अपार्टमेंट एक्ट, और यहाँ पर आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और वो मेंबरशिप गवर्न होती है यूपी कोऑपरेटिव एक्ट सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत। हालांकि ऑन अ पर्सनल लेवल आई विल नॉट रिकमेंड पीपल कि आप कोऑपरेटिव हाउसिंग पर ध्यान दें, क्योंकि this concept, I would say, that is my personal opinion, that this concept is not doing that well as it should have done as per the provisions given there. तो जहाँ तक हो सके you may try to avoid cooperative housing societies या फिर जो भी cooperatives के थ्रू प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है कि मैप कैसे सैंक्शन होता है, आप कहाँ इस चीज की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि अथॉरिटीज हैं ये 3 अथॉरिटीज, और जो भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट बनेगा तो उनके जो अप्रूवल्स हैं, जो मैप्स हैं, ये सब पहले से सैंक्शन होना बहुत जरूरी है। सैंक्शन मतलब पास होना।
अगर किसी प्रोजेक्ट में मैप नहीं है, पास नहीं है इन अथॉरिटीज से, तो उस प्रोजेक्ट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो प्रोजेक्ट इलीगल माना जाता है और उसको कभी भी डिमोलिश किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है, लॉक किया जा सकता है। और चूंकि इनके रेगुलेशंस नहीं होते तो क्वालिटी के बारे में भी कोई गारंटी नहीं होती है। अब इसमें एक अगला चीज आता है कि बाकी अप्रूवल्स कहाँ कहाँ से, मतलब फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज अप्रूवल्स और उनके डिपार्टमेंट्स। तो इस लिस्ट में कुछ अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट्स को कवर करने की कोशिश की है मैंने। जैसे कि अथॉरिटी है पहला, जब इधर देखेंगे हम लोग तो ये अथॉरिटी यानी कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा, तो ये लैंड को रेगुलेट करती हैं, बिल्डिंग मैप कैसे पास हुआ उसको रेगुलेट करती हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगी बिल्डिंग जब बन जाएगी, और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और वाटर भी, क्योंकि ये अपने आप में एक अथॉरिटी, लैंड वाटर भी इन्होंने ही चार्ज ले रखा है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी अप्रूवल्स हैं ये अथॉरिटी देती है। फायर डिपार्टमेंट आपकी बिल्डिंग फायर के नॉर्म्स को कितना पूरा कर रही है, फायर एनओसी यहाँ से मिलती है। बिल्डिंग की हाइट कितना होना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट हाइट को इसलिए भी रेगुलेट करता है क्योंकि क्या इनके पास टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस पर्टिकुलर हाइट तक जाकर ये आग बुझा सकें। तो ये अश्योर करते हैं कि इनके पास टूल्स हैं कि नहीं, या फिर बिल्डिंग में उस पावर के पंप्स बेसमेंट में, ग्राउंड पे या फिर टेरेस पे लगाए जा रहे हैं कि नहीं, कि किसी भी फ्लोर पे वाटर का कंटिन्यूअस प्रेशर बना रहे। और उसके साथ साथ जो अदर मीन्स हैं वो सब भी फायर के अवेलेबल हैं। फायर डिपार्टमेंट का रोल बिल्डिंग के चारों तरफ जो मूवमेंट होते हैं, रोड मूवमेंट्स होते हैं, अंदर की तरफ मूवमेंट्स होते हैं, इन सबको भी रेगुलेट करता है। तो जो बिल्डिंग का मैप है वो पहले फायर डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस आती है, तब जाकर के अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। पीसीबी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यहाँ पर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पास होती है, और एनवायरमेंट से रिलेटेड जैसे कि जैसे जनरेटर के नोजल सही जगह फिट है कि नहीं, एसटीपी है कि नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स हैं कि नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स वगैरह बनाई गई हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों की जो डिज़ाइन होती है ये सब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पास किया जाता है। तीसरा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्डिंग की हाइट कितनी है इसका भी परमिशन वहाँ से लेना पड़ता है। माइनिंग डिपार्टमेंट है कि जब बिल्डिंग की नींव डाली जा रही है, शुरुआत हो रही है, तो वहाँ से एक्सकवेशन जो लैंड किया जाएगा, एक्सकवेट किया जाएगा, इतनी सारी मिट्टी निकलेगी वहाँ से, तो वो माइनिंग की ही कैटेगरी में आता है, इसलिए माइनिंग डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेना आवश्यक होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की परमिशन इसलिए लेनी पड़ती है कि वहाँ पर जिस एरिया में बिल्डिंग बनाई जा रही है, वेदर दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू दैट बिल्डिंग और नॉट। जो अंदर लिफ्ट्स लगाई गई हैं और जो बाकी इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है। इसी तरीके से और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि बिल्डिंग को कहाँ बनाया जा रहा है। अब ये सब क्लियरेंसेस आपके लिए जानना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर एक इसमें से कोई क्लियरेंस नहीं है या कोई क्लियरेंस गलत है तो उसका आउटकम क्या होगा। उसका आउटकम ये हो सकता है दैट द कंसर्न डिपार्टमेंट में इम्पोज हैवी पेनल्टी ऑन द प्रोजेक्ट। और अगर ये प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज है तो बिल्डर तो सीधा वही काम करेगा व्हाट द गवर्नमेंट डज कि भाई कोई भी नया टैक्स आया आप प्रोडक्ट में डालो और खरीदने वाला उस एडिशनल टैक्स को पे करेगा। तो अब आपने अपना प्लान बनाया फॉर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी एट 100 रुपीज। नाउ इफ दीज क्लियरेंसेज आर नॉट देयर और अगर उस क्लियरेंस के बाद में फाइन लगाया जाता है तो वैल्यू 101 रुपए 102 रुपए भी हो सकती है। एंड इन दैट वे द बजटरी प्रोविजन ऑफ द बायर कैन गेट डिस्टर्ब। हम लोगों का आपका जो बजटरी प्रोविजन है दैट कैन गेट डिस्टर्ब। इसलिए ये सब अप्रूवल्स चेक करना while purchasing a property is very important for any of the home buyer, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट है, आपने फ्यूचर के लिए भी लोन लिया है, वो किस तरीके से बढ़ेगा कैसे नहीं बढ़ेगा, दैट एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर। तो इसलिए इन सब अप्रूवल्स की जानकारी करना आपके द्वारा बहुत आवश्यक है। अब ये सब आपको जानकारी मिलेगी कहाँ से, ये सब होमवर्क आप कैसे करेंगे। तो हाउ टू चेक ऑल द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आप रेरा वेबसाइट पर जा सकते हैं क्योंकि
रेरा का प्रोविजन जो है, मैंने कहा आप जैसे पहले लिखा था वहां पर ये बिल्डर बायर रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। इसलिए आपको रेरा की वेबसाइट पर रेरा के अंदर प्रोविजन किया गया है सेक्शन 3 में कि कोई भी अगर बिल्डर है, प्रमोटर है, वो किसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, उसको सेल करना चाहता है, एडवर्टाइज करना चाहता है, तो वो पहले रेरा से खुद को रजिस्टर कराएगा। रेरा जब रजिस्टर कर लेगा उस प्रोजेक्ट को, तो उसको एक पोर्टल दिया जाएगा। उस पोर्टल पे मतलब रेरा का ही पोर्टल होगा, उस पर उसको लिंक दिए जाएंगे, पेजेस दिए जाएंगे, जहां पर उसको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, प्रोवाइड करनी है, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, आप रेरा वेबसाइट पर जाकर के किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल को वहां से पता कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, उसमें जैसा मैंने आपको बताया, ये जो पीछे इंफॉर्मेशन है ये तो सब होनी ही होनी चाहिए। साथ में अपार्टमेंट का क्या कारपेट एरिया है, क्या सुपर एरिया है, बालकनी का क्या एरिया है, गराज का क्या एरिया है, कितने दिनों में ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, एस्क्रो अकाउंट नंबर क्या है जिस अकाउंट में वो पैसा लेगा। तो यहाँ पर रेरा से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो अकाउंट नंबर या जिस कंपनी के नाम पे आपसे चेक लिया जा रहा है या फिर पेमेंट मांगी जा रही है, क्या वो एस्क्रो अकाउंट ही है कि कोई और अकाउंट है। तो इसलिए पहली पेमेंट करने से भी पहले हर बायर को ध्यान देना है दैट द पेमेंट शुड बी एक्सक्लूसिवली एंड स्पेसिफिकली मेड इन द एस्क्रो अकाउंट दैट इज शोन ऑन द रेरा वेबसाइट। और अगर एजेंट ये कहता है कि बॉस हमने परमिशन लेके चेंज करा लिया और इस अकाउंट में नहीं किसी और अकाउंट में देना, वहां तो देखो जी इट में टेक 2 months 3 months टू गेट द अकाउंट चेंज और हमने अभी अभी चेंज किया इसलिए आप इसमें डाल दो, तो नेवर गेट इनटू सच ट्रैप्स। तो अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे और वी कैन डू दैट लेटर कि हम लोग रेरा की वेबसाइट देख सकते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। दूसरा होता है नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट या फिर जिस अथॉरिटी पर है वहां पर आप जा करके लैंड अलॉटमेंट डिटेल्स और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों को उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। और अगर कोई रीसेंट नोटिस है रिगार्डिंग की कंप्लीशन किन सेक्टर्स को दिए जा रहे हैं, किन सेक्टर्स को नहीं दिए जा रहे हैं, और इससे रिलेटेड इनके जुरिस्डिक्शन में जितने भी नए नए नोटिसेज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू परमिशन टू कंस्ट्रक्ट, कंप्लीशन और काफ़ी सारी चीज़ें, तो इसलिए इनकी वेबसाइट को ज़रूर देखिए। इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा जाता है, ये जो तीनों अथॉरिटीज़ हैं, तो इनकी वेबसाइट को ज़रूर देखना है। और इन्वायरमेंट क्लियरेंस की वेबसाइट को भी ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट का कोई रॉन्ग हुआ तो बहुत हैवी फाइन लग सकता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। 20% तक फाइन लगे हैं कंट्री में एनजीटी के द्वारा। फॉर एग्जांपल नोएडा में एक प्रोजेक्ट था सेक्टर 75 में, उसमें अराउंड 50 सीआर का फाइन लगाया है एनजीटी ने। तो अब ये सब रिकवरी कैसे होंगी, तो इसके लिए अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको पोजीशन देने से पहले आपके कॉस्ट में ऐड किया जा सकता है। जिस तरीके से प्रीवियसली जो पिछले डिकेड में प्रोजेक्ट्स बने हैं नोएडा में 2010, 11, 12, 13 में जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे सेक्टर 75 या फिर ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पे एडिशनल फार्मर कंपनसेशन 64% ऐड किया था हाई कोर्ट ने, क्योंकि वहाँ लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस गलत थी या कंपनसेशन कम था। उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा 64 एडिशनल दिया जाए परसेंट। तो ये सारे होम बायर्स के ऊपर 64% एडिशनल कॉस्ट लगा दी गई ये बिल्डर्स के द्वारा। बहुत लोगों के में ये वैल्यू 4 लाख 5 लाख तक पहुंच गई। तो इससे अगर बजटरी प्रोविजन गड़बड़ हो रहा है तो उस चीज को ध्यान रखते हुए आपको ये सारी चीजें जरूर चेक करना चाहिए इन 3 पोर्टल से एटलीस्ट। बाकी पे शायद कम फाइन लगे पर इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा फाइन लग जाता है। अब अगला आता है कि जब भी whenever we are purchasing any property तो we must ensure that it is a RERA registered project। जैसे मैंने पहले बताया कि section 3 read with section 4 of the RERA Act, it requires mandatory registration of any real estate project where the promoter wants to advertise and sell it। जब तक प्रमोटर एडवर्टाइज और सेल नहीं कर रहा, वो चाहे तो अपने पैसों से या इन्वेस्टर के पैसे से, जहां पर वो एंड यूजर राइट नहीं दे रहा है, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है 100 फ्लैट्स की, 1000 फ्लैट्स की,
पर द मोमेंट इट विल कम इनटू द मार्केट टू सेल द प्रोजेक्ट, टू सेल इंडिविजुअल यूनिट्स, तो एडवर्टाइज और सेलिंग जैसे ही शुरू होगी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। मतलब कि अगर हमारे आप जैसे इंडिविजुअल्स बाहर खरीदने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन होना ज़रूर है। ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/2017 से लागू हुआ है, जहां पर भी प्रॉपर लैंड का एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और उस पर 8 से ज़्यादा यूनिट्स बनाई जा रही हैं तो रेरा उस पर लागू हो जाएगा। अब बहुत सारे शहरों में या यहाँ पर भी जो आबादी लैंड है, गांव है, वहाँ पे 2 से 3 फ्लोर के लोग घर बनाकर बेच रहे हैं, फ्लोर जिसको कहते हैं, फ्लोर खरीदा है या फ्लोर बेचा जा रहा है, तो उस पर ये लागू नहीं होता, पर वहाँ पर रिस्क भी ले रहा है आदमी क्योंकि कॉस्ट कम है। तो अब इस रेरा में आपको बेनिफिट क्या है? सारे डॉक्यूमेंट्स, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं कि जितने भी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रेरा के पोर्टल पर अपलोडेड होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, और आप अगर यहाँ पे एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में घर खरीदते हैं तो आपके पास एक इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, जहाँ पर आप अपने केस को फाइल करके, एक्ट के अंदर तो 2 महीने कहे गए हैं कि हर ग्रीवांस को रिड्रेस किया जाएगा, पर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर पैसिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अथॉरिटी की, जिसमें वो साल भर ले रहे हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को, और एग्जीक्यूशन अगर कराना है उस ऑर्डर का तब तो 2 से 3 साल भी लग जा रहा है। अगला है कि भाई बिल्डर की अकाउंटेबिलिटी होती है, बिल्डर अपनी जो डिटेल्स हैं प्रोजेक्ट की वो सब शेयर करता है, और जब एक बार प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने केसेस फाइल हुए हैं ये भी आपको रेरा की वेबसाइट पे मिलेगा जब आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जाएंगे, और उसके ऑर्डर्स भी मिलेंगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं ये आप जो है रेरा में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप रेरा में चाहें तो उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन करके भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप ये इसकी वेबसाइट up-rera.in है और इसके पोर्टल पर जा करके हम देख सकते हैं। इसको एंड के लिए रखते हैं, रेरा की वेबसाइट को एग्जामिन या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर्स, रेरा के अंदर दिया हुआ है। तो राइट्स में है कि राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आप, ये सेक्शन 19 है रेरा का, तो हर बायर का राइट है राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में जितनी डिटेल्स चाहिए आप वो एजेंट से या फिर उस कंपनी से मांग सकते हैं। अब इसको एंश्योर करने के लिए क्या प्रोविजन किया गया है? इसको एंश्योर करने के लिए एक सेक्शन 11 बनाया है रेरा एक्ट में, और सेक्शन 5 बनाया गया है, जिसमें कि कहा गया है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करना होगा वेबसाइट पे। तो रेरा में आप प्रोजेक्ट टैब पे क्लिक करके जब प्रोजेक्ट देखेंगे तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस प्रोजेक्ट का, जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑल दी अप्रूवल्स एंड ऑल दी अप्रूवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब लैंड, बैंक अकाउंट, और वो जितने भी अप्रूवल्स मैंने बताए वो सब वहां पर आपको मिलना आवश्यक है। और उसके साथ साथ एग्रीमेंट टू सेल के क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो भी आपको वहां मिलेगा। तो आपको पहले ये शिकायत आती थी कि पहले पैसा ले लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू और उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कराते हैं, जो कि वन साइडेड होता था। So to redress this grievance, what the act has done or what this law has done, that the copy of the agreement to sale which is to be executed between the builder and buyer, that will have to be uploaded on the portal of the RERA. तो आप जिस प्रोजेक्ट का देख रहे हैं वहां से एग्रीमेंट टू सेल आप देख सकते हैं, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप पहले से ही पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ रेरा ने एक रेगुलेशन निकाला जिसका नाम है यूपी रेरा एग्रीमेंट टू सेल रेगुलेशन 2017, मतलब वहां पर उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि इसी फॉर्मेट में सारे एग्रीमेंट टू सेल होने चाहिए। तो अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट में रेरा की वेबसाइट पे जरूर जाना है और वहां पर एग्रीमेंट टू सेल की ड्राफ्ट को डाउनलोड करके उसको पढ़ना है और उसको कंपेयर करना है, जो कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2017 रेगुलेशन में फॉर्मेट दे रखा। उससे अगर उससे अलग है तो आप उसको चेंज कराने के लिए परेशान मत होइए, दूसरा प्रोजेक्ट देख लीजिए, क्योंकि चेंज कराने में फिर से आपको 6-7 महीने का टाइम लग सकता है। तो ये है, आपको राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगा। राइट टू नो द कंप्लीशन शेड्यूल, तो आपके एग्रीमेंट टू सेल में ये तो लिखा रहेगा कि मैं 36 महीने में इस प्रोजेक्ट को दे दूंगा, आपकी यूनिट को दे दूंगा, लेकिन साथ साथ रेरा पे हर बिल्डर को अपडेट करना होता है एक अपना कंप्लीशन शेड्यूल।
तो जैसे जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा कि एक टेबल बनाई जाती है जिसमें अलग अलग टास्क को लिखा जाता है, एक टाइमलाइन बनाया जाता है, कब कौन सा टास्क शुरू होना है, कितने कितने परसेंट में होना है, इसका एक टेबुलर चार्ट होता है। उसको शेयर करना ज़रूरी है वेबसाइट पर। ये जिन डेवलपर्स की वेबसाइट पे मिले, दे आर सेफर टू इन्वेस्ट। और इसके साथ साथ एक क्वार्टरली अपडेट का भी वहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पोर्टल पर। और वहाँ पर बिल्डर को देना होता है क्वार्टरली अपडेट ऑन 2 काउंट्स, नंबर 1 स्ट्रक्चरल और नंबर 2 फाइनेंशियल। तो स्ट्रक्चरल का मतलब है कि वो क्या क्वार्टरली कितना उसने बनाया, मतलब कि कितना ब्रिक वर्क किया, कितना उसने प्लास्टर वर्क किया, कितना बाउंड्री कितना बनाया, इन सब चीज़ों के अपडेट्स देगा और साथ में लिखेगा कि वेदर दिस मीन्स ये कितना परसेंट मैच कर रहा है अपने कंप्लीशन शेड्यूल से, जो क्वार्टरली अपडेट है। उसी तरीके से दूसरा फाइनेंशियल अपडेट होगा कि कितने पैसे रिलीज हुए, कितने पैसे आ रहे हैं। ऑल दीज डिटेल्स आर सर्टिफाइड बाय द सीए। तो एक आर्किटेक्ट सर्टिफाइड करता है, एक ये। हालांकि आप अगर चेक करने जाएंगे तो आई हैव नेवर फाउंड एनी प्रोजेक्ट ऑन रेरा जिसने क्वार्टरली अपडेट टाइमली किया हो और ये कंप्लीशन शेड्यूल को अपलोड किया हो। बहुत ही रेयर में कभी कोई मिला हो, दो आई हैव नेवर सीन। फिर है अगला राइट टू क्लेम पोजीशन। तो अगर मान लेते हैं कि आपका 3 साल का था और वो नहीं आपको पोजीशन दे रहा है उस यूनिट का जो आपकी थी, और उसके अलावा कोई और यूनिट बन गई हो, तो आप दूसरी ऑल्टरनेट यूनिट का पोजीशन मांगने का आपको राइट है। लेकिन अगर वो नहीं दे पा रहा है तो आपके पास राइट टू क्लेम रिफंड का है। तो अगर शेड्यूल पीरियड में बिल्डर आपको पोजीशन नहीं दे पा रहा है, देन यू हैव द राइट to get the refund of your investment with interest। यूपी में इंटरेस्ट एसबीआई प्लस एसबीआई मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट जो कि 7.75 आमतौर पे होता है 3 साल का, इसको आप चेक कर सकते हैं एसबीआई की वेबसाइट पे, प्लस 1%। तो ये जो रेट है ये कहीं ना कहीं बैंक रेट, लोन रेट से कम है, बट अब ऐसा लॉ बना है, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, सो दैट इज कंटिन्यूइंग। और अगला है राइट टू हैव डॉक्यूमेंट्स। तो जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर, जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसी समय आपको जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर हैं वो सब कुछ आपको बिल्डर को एट योर रिक्वेस्ट एट योर कॉस्ट वो आपको देगा। मतलब अगर 50 पेपर है और उसकी फोटो कॉपी करने का कॉस्ट 200 रुपये आ रहा है, 150 रुपये आ रहा है, 50 रुपये आ रहा है, तो वो आप पे करके उससे लेंगे विद देयर स्टैम्प। और राइट इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट, मतलब अगर प्रोजेक्ट में कोई डिफेक्ट छोड़ दिया है उस बिल्डर ने, तो आपके पास राइट है कि आप उसको दुरुस्त करा सकते हैं विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द पोजीशन। पोजीशन के 5 साल तक अगर इंटीरियर्स में कोई कमी आ जाती है, प्लास्टर टूटता है, तो बिल्डर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करेगा। और भी काफ़ी सारे राइट्स हैं, जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका मैप नहीं ऑल्टर कर सकता कभी भी बिल्डर विदाउट योर परमिशन। अगर उसने आपकी परमिशन नहीं ली है तो आपको राइट होगा कंपनसेशन लेने का अंडर द रेरा एक्ट। लेकिन यूपी अपार्टमेंट एक्ट इससे थोड़ा आगे चलता है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट कहता है कि अगर परमिशन नहीं है तो उस मैप को कैंसिल भी कराया जा सकता है। तो कैंसिलेशन के लिए हाईकोर्ट जाना होता है, और अगर आप कंपनसेशन से यू आर ओके, देन यू कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम रेरा फॉर डेविएशन इन द मैप। डेविएशन कैसे हो सकता है? डेविएशन बिल्डिंग की हाइट बढ़ा के एडिशनल फ्लोर्स बढ़ाए जा सकते हैं एफएआर फर्दर परचेज करके। जो मैंने 2.5 बताया वहाँ पे 0.75 परचेजेबल एफएआर की भी परमिशन होती है बिल्डर के पास, जो कि वो शुरू में नहीं लेते। जब प्रोजेक्ट में और पैसे आ जाते हैं तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो उसको ले लेते हैं, जमा करा के वो पैसे, और फिर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, जिससे कि विच इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर डिले इन मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो अगर यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंदर इसमें ये दिया है कि 100% जो इंटेंडिंग परचेजर्स है, मतलब जो अलॉटीज हैं, इनकी परमिशन लेना, इनका रिटन कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नहीं लिया गया तो इन दैट सिनेरियो द बायर्स हैव द राइट टू गेट द सैंक्शन मैप कैंसिल। तो उसका क्या प्रोसेस है वो सब हम लोग फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं, बट दैट इज वन ऑफ योर राइट। अब ड्यूटीज भी हैं काफ़ी सारी बायर्स की, कि आपको जो मैं आज करा रहा हूँ, कि आपको मतलब जिसके बारे में गाइड कर रहा हूँ, ड्यूटी टू रिसर्च ऑन द प्रोजेक्ट। तो ये आपका ड्यू डिलीजेंस है कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर अपना खुद से अच्छे से रिसर्च करें कि इसमें कौन बिल्डर्स हैं, प्रमोटर्स एक्चुअल कौन है, क्या आप सही एस्क्रो अकाउंट में पैसे दे रहे हैं कि नहीं।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है लेकिन एस्क्रो अकाउंट कोई और देके उसमें आपसे पैसे ले लिए गए। अब अगर आपसे दूसरे अकाउंट में पैसे ले लेते हैं तो आप शायद रेरा के पास ना जा पाए, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बिल्डर से डेवलप ही नहीं हुई हो, क्योंकि एजेंट धोखा दे सकता है। इसीलिए आपको रिसर्च करनी है कि जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो उसका बैंक अकाउंट क्या रेरा वेबसाइट पर वही है जिसमें ये पैसा मांग रहा है, और कंपनी का भी क्या वही सही नाम है, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं एक्चुअल प्रमोटर का नाम कुछ और होता है, एबीसी लिमिटेड, और वो प्रोजेक्ट किसी और नाम से बेच सकता है। हाँ, जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट, मतलब एनी काइंड ऑफ नेम कुछ भी दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, अजनारा के प्रोजेक्ट्स हैं, सबके नाम अजनारा के नाम से रखे जाते हैं, या महागुन के प्रोजेक्ट्स हैं महागुन के नाम से रखे जाते हैं, या फिर लोटस के प्रोजेक्ट्स हैं लोटस के नाम से। पर इनके पीछे जो कंपनी है इनका नाम कुछ और हो सकता है, हसिंदा हो सकता है, ग्रेनाइट गेट हो सकता है, एवीजी प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए रेरा की वेबसाइट पे आपको जाके ये जरूर चेक करना है प्रमोटर कौन है और क्या उसी के नाम पे चेक कट रहा है और जो अकाउंट है उसके ही नाम पे है। क्योंकि अगर आपने गलत अकाउंट में धोखे से पैसा दे दिया तो रेरा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि रेरा वहीं पर पिक्चर में आती है जहां पर कि आपका एक रजिस्टर्ड प्रमोटर के साथ कोई डीलिंग चल रही हो फॉर अ रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। ड्यूटी टू मेक पेमेंट मतलब जब जब बिल्डर डिमांड करेगा, अगर वो डिफॉल्ट में नहीं है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब अगर उसने कहा है कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोग्राम है या टाइम लिंक प्रोग्राम, मतलब पेमेंट शेड्यूल है कि हर साल आपको इतने पैसे देने हैं, या फिर 9th फ्लोर बनने पे 18th फ्लोर पे इतने देने हैं, तो दैट यू मस्ट ऑलवेज पे, अदरवाइज द प्रमोटर विल हैव द राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन यू। ड्यूटी टू पे इंटरेस्ट, तो ड्यूटी टू पे इंटरेस्ट वही, अगर आपने डिले किया, ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जब प्रमोटर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी है, मतलब इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सेल लीड सब लीज के लिए, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस समय। अब कई लोग इसलिए ही चाहते हैं कि वो बेचने का उनका मूड होता है, वो रजिस्टर नहीं कराना चाहते, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रखा था तो अगले स्टैम्प ड्यूटी के पैसे क्यों पे करें, इन सब चीज़ों को लेकर के रोक के रखते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये ड्यूटी कास्ट की गई है। ड्यूटी टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ बायर, तो एक्ट के अंदर, दोनों ही एक्ट के अंदर, अपार्टमेंट और इसके रेरा एक्ट के अंदर, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन पहले अलॉटी एसोसिएशन बनाना होता है जब प्रोजेक्ट कम बन रहा होता है, ताकि अब ये अलॉटी एसोसिएशन क्यों बनाना होता है, ये सेक्शन 9 और 10 में बनाया जाता है। इसके अंतर्गत इसलिए बनाते हैं ताकि ये जो राइट्स हैं आपके और जो बिल्डर के ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, इसको आप अकेले एनफोर्स करने में, एक अकेला बायर एनफोर्स करने में असमर्थ हो सकता है, इट मे नॉट बी कैपेबल, बट व्हेन देयर इज एन एसोसिएशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेरा, तो इट कैन एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑफ द प्रोजेक्ट। क्योंकि देखिए, नन ऑफ द अथॉरिटीज इन कंट्री हैव सो मेनी एम्प्लॉइज so as to allow them or to enable them to keep a watch on the construction of the project. तो ये अलॉटी एसोसिएशन कैन बी अ वेरी गुड आइडिया, दो इट इज नॉट हैपनिंग इन द सिटी। बहुत ही कम अलॉटी एसोसिएशन है नाम मात्र के, पर अगर ये बनता है प्रोजेक्ट के 51% यूनिट्स जब बिक जाती हैं तो अलॉटी एसोसिएशन बनाया जाता है। तो एज अ होम बायर या रियल एस्टेट बायर आपको ये भी देखना है, पूछना है कि क्या 51% से ज़्यादा सेल हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो अलॉटी एसोसिएशन, रजिस्टर्ड अलॉटी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कौन है और उनका ऑफिस का है, ताकि आप उनकी मेंबरशिप भी ले सकें और अपने राइट्स को बेटर वे में एनफोर्स करा सकें। और लास्ट है ड्यूटी टू टेक पोजीशन, मतलब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, आपको पोजीशन ऑफर किया जा रहा है, तो आप पेमेंट्स को ना रोकें, क्योंकि अगर आप पेमेंट्स रोकते हैं कोई भी बायर, तो कम्युनिटी बिल्डिंग में सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा पैसा ना दिए जाने पर प्रोजेक्ट स्टॉल हो सकता है, तो इसलिए भी ये ड्यूटी दी गई है। ये सेक्शन 19 में था। अब आते हैं हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर पे। अब ये एक हद तक तो मैंने पहले इसको कवर ही कर लिया, बट अगेन, तो शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन रेरा वेबसाइट, लैंड डिटेल, बिल्डिंग सैंक्शन मैप बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्वार्टरली अपडेट्स उसको अपलोड करने हैं, और सारे अप्रूवल्स भी अपलोड करने हैं। एडवर्टीजमेंट में लेके उसके क्या ड्यूटीज़ हैं कि कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, नो एड एंड सेल विदाउट रेरा रजिस्ट्रेशन, चाहे न्यूज़पेपर में ऐड आ रहा हो, चाहे रोड साइड होर्डिंग हो,
चाहे मैगजीन में हो, चाहे वेबसाइट्स में हो, चाहे वेबसाइट पे एज अ पॉपअप ही क्यों ना आ रहा हो, रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लिखना है उसको। और रेरा के रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स की किस पोर्टल पर, किस वेबसाइट पर, कहाँ पर आप उसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ब्रोशर वगैरह सब जगह ये चीज़ मेंशन होना चाहिए। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं बायर दे, ये प्रमोटर दे सकता। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी झूठा वादा कि मेरे प्रोजेक्ट में ये क्वालिटीज़ हैं, आई विल डेवलप दीज थिंग्स, कि इटालियन मार्बल, वुडन फ्लोर, विट्रीफाइड टाइल्स की दीवार। तो मतलब जो भी प्रोमिसेस हैं झूठे नहीं हो सकते। अगर ऐसा वादा हो रहा है तो आप उससे ब्रोशर जरूर लीजिएगा इसको, और वेबसाइट पूछिएगा वेबसाइट पर भाई ये लिंक कहाँ अवेलेबल है। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रेरा पर अवेलेबल नहीं है उसको हमें यकीन नहीं करना है। तो अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो ये सेक्शन 12 के अंदर इसकी रेमेडी है, और सेक्शन 12 ऑफ द रेरा एक्ट के अंदर इसको बार किया गया है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती किसी भी फॉर्म में, ओरल, पब्लिकेशन और बाय वे ऑफ एनी कम्युनिकेशन। तो अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन कुछ भी निकलती, इनफैक्ट कुछ केसेस भी किए थे, तो उसमें वादा ये किया गया था बिल्डर के द्वारा और उसके एजेंट के द्वारा कि बॉस आपका लोन कराना हमारी जिम्मेदारी, और उसने अपने ब्रोशर्स वगैरह में लगा रखा था एसबीआई, पीएनबी, बजाज, टाटा कैपिटल, आईसीआईसीआई, सबसे मेरे प्रोजेक्ट में लोन अवेलेबल है और हम करा के देंगे। तो उसने लोन कराया, पर उन एडवर्टाइज जो वहाँ पे थे उससे ना करा करके एक नई एनबीएफसी से किसी से करा दिया, और एनबीएफसी का इंटरेस्ट रेट 18%। लोन तो उसने करा दिया, लेकिन अब क्या ये फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं हुई कि मैं आपको जो है नेशनलाइज्ड बैंक और जो लीडिंग लैंडर्स हैं एचडीएफसी और जो मैंने नाम बताया उनसे कराऊंगा। इनके आमतौर पे लैंडिंग रेट्स कम होते हैं, 9.5-8% से 11% तक, कहाँ 18%। तो उसने जो है अपना जो इनिशियल अर्नेस्ट अमाउंट था, आमतौर पे जो कि 10% होता है, आमतौर पे नहीं, लीगली 10% होना चाहिए, तो वो 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। तो अगर वो इंफॉर्मेशन इसने गलत दी तो रेरा इस केस को नहीं समझ पाया। उसने कहा कि नहीं, इन्होंने आपका एडवर्टाइज ये लोन करा दिया, बात तो लोन कराने की थी, अब आपको हम लोग रिफंड नहीं दिला पाएंगे, आप इस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करिए, या फिर बिल्डर चाहे तो अपना 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट काट के आपको रिफंड कर दे, जैसा आप लोगों में डील हो। इस केस को अपील में ले जाया गया। अपील में इस बात को कोर्ट ने एडमिट किया कि एडवर्टीजमेंट मीन्स जो चीज़ें उस पर लिखी हैं, तो अगर ब्रोशर में उसने पर्टिकुलर बैंक्स शो किए, लोन अवेलेबल फ्रॉम करके उसने जिनके लोगोज लगाए थे, अगर उनमें से वो नहीं किसी का दिला पाया और किसी और का दिलाता है तो इट विल अमाउंट टू फॉल्स एडवर्टीजमेंट, और उसकी रेमेडी है रिफंड ऑफ द एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट। तो नो फॉल्स एडवर्टीजमेंट। लास्ट है नो फेयर प्रैक्टिस और मिस रिप्रेजेंटेशन। अनफेयर प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से जो कि मार्केट में अच्छी बात ना मानी जाए, मतलब इन दैट सेक्टर या फिर एज पर गवर्नमेंट दैट में नॉट बी डीम्ड फिट। जैसे कि इसमें नो अनफेयर प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया है एक्ट में सेक्शन 7 में, जिसमें कहा गया प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट वेदर ओरली और इन राइटिंग और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन व्हिच फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द सर्विसेज आर ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और ग्रेड। तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो कहता है कि भाई क्लब में मैं ये फैसिलिटीज दूंगा, क्लब एक हाई क्लास का बना के दूंगा, वीडियो कॉलिंग फैसिलिटीज दूंगा पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब एक घर से दूसरे घर आपको वीडियो कॉल्स की फैसिलिटी होगी, तो इन सब तरह का। दूसरा है रिप्रेजेंट्स दैट द प्रमोटर और हिमसेल्फ हैज अप्रूवल और एफिलिएशन व्हिच प्रमोटर और हिमसेल्फ डज नॉट हैव। अब जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हमारा एफिलिएशन तो ईएमआर, बुर्ज खलीफा, दुबई वालों से है, या फिर हमारा वो ट्रम्प टावर से है और उनकी टेक्नोलॉजी से हम बनाएंगे इस प्रोजेक्ट को, और मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द सर्विसेज देयर। तो सर्विसेज में बहुत तरह की सर्विसेज हो सकती हैं। लिफ्ट की क्वालिटी हो सकती है, हाउसकीपिंग की हो सकती है, क्लब्स की हो सकती है। तो ये तो सर्विसेज धीरे धीरे, मतलब विद एवरी प्रोजेक्ट इट कीप्स ऑन गेटिंग इवॉल्व। 10 साल पहले स्विमिंग पूल नहीं होता था, अब स्विमिंग पूल हो गया। स्विमिंग पूल में वो बोल रहा है हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, कवर्ड, क्या नाम है इसका, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट। अब ये सब चीज़ें अगर नहीं मिलती हैं तो डेफिनेटली दैट विल अमाउंट टू अनफेयर प्रैक्टिस, और उसी तरीके से उसी में मिस रिप्रेजेंटेशन भी आता है।
अब इसकी रेमेडी यही है कि आपको कंपनसेशन आप ले सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट से निकल भी सकते हैं। बुकिंग के समय उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो मोर देन 10% विदाउट एग्रीमेंट टू सेल। एटीएस मीन्स एग्रीमेंट टू सेल। आपको जब तक एग्रीमेंट टू सेल नहीं होगा 10% से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। एटीएस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय रेरा अथॉरिटी। शेयर हर पेमेंट की रिसीट्स उसको शेयर करनी पड़ेगी। नो डेविएशन फ्रॉम मैप। मैप जिस समय आपने प्रोजेक्ट खरीदा उसके बाद वो डेविएट नहीं कर सकता। अकाउंट एंड फंड्स को लेके एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए, वो भी एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट का मतलब होता है कि जहां पर बैंक इज इन्वॉल्व इन रिलीजिंग द पेमेंट, मतलब कि बिना बैंक की परमिशन के, मतलब जिसका वो अकाउंट है वो अपनी मर्जी से जब चाहे वो पैसे नहीं निकाल सकता। उस पैसे को निकालने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी और उन कंडीशंस को चेक करने के लिए कोई एक पर्सन होगा। तो जैसे एस्क्रो अकाउंट यहाँ पे हो गया, तो जो कंपनी का सीए है वो सर्टिफाई करेगा, फिर उसको जो बैंक का मैनेजर है वो चेक करेगा, फिर पैसे रिलीज करेगा। मतलब अगर वो कहता है कि देखिए पिछले 3 महीने में मैंने 1000 ईंटें लगाई हैं, 1000 ईंटों का पैसा इतना होता है, इसको रिलीज कर दीजिए, तो उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन कोई चेक नहीं करता, जो सीए का सर्टिफिकेट है उसी को मान लिया जाता है। सिंस द सीए से सेइंग, तो बर्डन को एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते हैं। जब जांच होती है तभी ये लोग पकड़े जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत होती है एज अ बायर। इफ एंड यूजर, अब एंड यूजर हैं आप या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैसा तो अपना ही जाना है। फिर डिलीवरी को लेकर के भी है कि टाइमलाइन शेयर करना है, वर्क कंस्ट्रक्शन अपडेट्स देनी है, डिले पेनल्टी देना है अगर डिले हो जाता है। आपका जब घर देगा तो लीज को एग्जीक्यूट करके ही देगा, बिना लीज के एग्जीक्यूशन के, मतलब बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इसके नहीं देगा। फिर उसके बाद आपका एओए का फॉर्मेशन भी करवाएगा, और जब तक एओए का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक कि वो मेंटेन करेगा एट अ रीजनेबल रेट। ये तो हो गए रेरा एक्ट के अंदर। इसके साथ अपार्टमेंट एक्ट में भी उसकी काफी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि डीड ऑफ डिक्लेरेशन सबमिट करना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना। अब आता है ये स्टेज कि व्हेन इट कम्स टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो डिलीवरी के समय ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस शहर में। और इसीलिए इस टॉपिक को मैंने लिया, क्योंकि जब आपको डिलीवरी करेगा वो यूनिट का, तो दो तरीके से कर सकता है कि आपको एक पोजीशन दे दे बिना आपकी रजिस्ट्रेशन कराए। अब ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होते यहाँ पर? क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दीज आर इन द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटीज, मतलब जो अथॉरिटी जिसने लीज दिया है उसके हाथ में इसको करना। और बाकी शहरों में जैसे गाजियाबाद है, मेरठ है, इन सब जगहों पर ये सेल जो होता है ये सिर्फ दो ही पार्टी के बीच में होता है, बिल्डर और बायर के बीच में। पर यहाँ पे चूंकि सब लीज एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले हमें लेसर चाहिए। लेसर मतलब नोएडा अथॉरिटी जिसने लीज दिया था। फिर लेसी चाहिए, यानी कि जो बिल्डर है जिसने उस लैंड को लिया है और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई है। फिर सब लेसी, जो कि हमारे जैसे होम बायर्स हो जाते हैं या प्रॉपर्टी बायर्स हो जाते हैं। तो इन तीनों के बीच में होगा। अगर इसमें से एक नहीं है तो कैसे सेल सब लीज एग्जीक्यूट होगी? तो सब, अब जिसको एग्जीक्यूट करना है उसी को परमिशंस भी देनी है कि हाँ भाई आपकी बिल्डिंग तो पूरी तरीके से रेडी है, इट इज फिट फॉर पोजीशन, इसमें लोग रह सकते हैं, ये सेफ है, और आपने हमारे सारे ड्यूज भी दे दिए। अब ड्यूज किन चीजों में हो सकते हैं? सबसे पहले तो लैंड का ड्यू। तो अथॉरिटी ने यहाँ पे पहले प्रीवियसली ये था कि 10% ऑफ द लैंड कॉस्ट ले करके बिल्डर्स को लैंड दे देती थी, और बाकी के लिए उन्होंने शेड्यूल सेट कर रखा था अपने लीज में। और जिन लोगों ने पेमेंट जितना नहीं किया है उतने अपार्टमेंट्स रोक लेते हैं, और जितना पेमेंट आती है उतना ही रिलीज करते हैं। प्रोपोर्शनेट टू दी पेमेंट वो यूनिट्स को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपए उनको लेने हैं या 1 लाख लेने हैं, लेट अस टेक अ हायर नंबर। 1 लाख रुपए अथॉरिटी को लेने हैं बिल्डर से, और टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स वहां पे 10 है। तो 10-10 लाख के हिसाब से 10 अपार्टमेंट बढ़ गए। अब अगर बिल्डर ने 10 लाख जमा कराया तो एक यूनिट रजिस्टर करा देगी अथॉरिटी। 60 लाख जमा कराए तो 6 यूनिट करा देगी। तो इसी को उन्होंने प्रोपोर्शनेट सिस्टम कह करके रजिस्टर कराना शुरू किया। अभी पीछे पॉलिसीज चेंज हुई हैं, और अब आगे जो लैंड अलॉट हो रहे हैं वो फुल अमाउंट पे हो रहे हैं। फिर भी जो आगे भी लैंड्स अलॉट हो रहे हैं या जो पहले भी अलॉट हुए, अगर उनके पास कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग नॉर्म्स में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि बिल्डर टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं,
और वो कमी जब तक रहेगी तब तक कंप्लीशन नहीं मिलेगा, और जब तक कंप्लीशन नहीं मिलेगा तो एज पर द यूपी अपार्टमेंट एक्ट, एज पर रेरा एक्ट एंड एज पर द बिल्डिंग रेगुलेशंस बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो सकती। और चूंकि बिल्डर और बायर तो कर लेते अगर ये दूसरा शहर होता, पर यहाँ पे चूंकि अथॉरिटी इन्वॉल्व है तो वो इलीगल एक्ट में नहीं इन्वॉल्व हो सकती, इसीलिए ये चीजें रजिस्टर नहीं होती। अब आते हैं कि what is the benefit of registration and disadvantages of having a property without registration। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर रजिस्टर्ड है आपकी प्रॉपर्टी तो आपके पास उसका कंप्लीट टाइटल आ जाता है। पोजीशन है तो ओनरशिप हो सकती है आपकी, क्योंकि पोजीशन है और जिससे आपने पोजीशन लिया उसको पूरे पैसे दे रखे हैं और उसका एविडेंस है आपके पास। तो ओनरशिप एक राइट है किसी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, और उसके ऊपर का भी एक राइट है टाइटल जिसको बोलते हैं। तो जब टाइटल आ जाता है तो मतलब कि गवर्नमेंट ने उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया है आपकी ओनरशिप को। और अब अगर कोई बंदा आता है उस प्रॉपर्टी के राइट को, आपके ओनरशिप को चैलेंज करने, तो गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट यू एंड इट विल गिव यू द एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ द रजिस्टर्ड डीड। तो वो रजिस्टर्ड डीड आपके लिए एक एविडेंस बन जाता है। तो जब आपके पास ये एविडेंस होगा तो कल को आप इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हैं, यानी कि बैंक को कह सकते हैं कि बॉस यू कीप दिस प्रॉपर्टी और मुझे बिजनेस शुरू करना है, लोन दे दीजिए, मेरे बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है, इस पर लोन दे दीजिए। सो यू कैन टेक ऑल दोज लोन्स एक्सेट्रा। अब अगर प्रॉपर्टीज रजिस्टर नहीं हो रही है तो दूसरा नुकसान क्या है कि जो नए बायर्स आते हैं ये लोन नहीं ले पाते, क्योंकि जब भी आप घर खरीदने के लिए लोन लेंगे तो दैट वेरी प्रॉपर्टी विल बिकम अ सिक्योर्ड एसेट, ठीक है, फॉर दैट बैंक। मतलब बैंक उसी को मॉर्गेज करेगा और आपको उसमें रहने देगा। तो जब तक आप जितना जितना पैसा उसको देते जाएंगे प्रोपोर्शनेटली, उतने के ओनर वो रहेगा और प्रोपोर्शनेटली आप ओनर रहेंगे उसके। लेकिन जिस दिन पैसा नहीं दे पाए उस दिन वो निकाल सकता है। तो आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब इन सिटीज में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 50% ऑफ द अवेलेबल इन्वेंट्री डज नॉट हैव लोन फैसिलिटी ऑन दैट। तो जिन प्रॉपर्टीज पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है उनके जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेटिंग हाई हो गए पिछले 4 साल में, और जो नई प्रॉपर्टीज जिनके नहीं है उनके लिए आपको अपने पर्सनल फंड से इंतजाम करके पे करना पड़ेगा। सो दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू क्या। अब जब घर खरीदते हैं तो एक चीज और भी आती है कि साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब आप साइट इंस्पेक्शन खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में रेरा अथॉरिटी ने साइट इंस्पेक्शन करवा करके डिफरेंट केसेस में उनकी रिपोर्ट, उनकी साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी अपने पोर्टल पर अवेलेबल करा रखा है ऑन द वेरी पेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जब आप प्रोजेक्ट में जाएंगे तो उसमें सबसे नीचे आपको साइट इंस्पेक्शन भी दिख जाएगा। तो इन सब उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि कितना बनना था, कितना बन चुका है, साइट पर कितने मजदूर हैं, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे एक ये प्रोजेक्ट है एपेक्स स्प्लेंडर इन नोएडा एक्सटेंशन, स्टॉल्ड पड़ा है, इसकी आपको वहाँ पे साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल सकती है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है आप उसका प्रोजेक्ट में जाके साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी देखें, नंबर ऑफ केसेस भी देखें। फिर अगली एक चीज चेक करने के लिए आती है कि क्या कोई प्रोजेक्ट सेक्शन 8 के अंदर है, मतलब कि रेरा ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके होम बायर मतलब जो अलॉटी एसोसिएशन है उसको तो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं दे दिया, या फिर वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में तो नहीं फंसा है, जिसको कि आम भाषा में कहते हैं आईबीसी तो नहीं चल रही इसकी, या इंसॉल्वेंसी तो नहीं चल रही है। अब इंसॉल्वेंसी चलती है तो उसमें से पुराने बायर्स निकलना चाहते हैं और नए बायर्स एज एन अपॉर्चुनिटी देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट इट में नॉट बी सो कि जो चीज़ सस्ती वो कंप्लीट हो ही जाए, क्योंकि अभी भी 2017-18 की जो इंसॉल्वेंसी में प्रोजेक्ट्स फंसे हैं उनको भी परमिशन नहीं मिल पा रही है, और जिसमें परमिशन मिल भी गई है अगले रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को, मतलब कि जो नया परचेजर आया है प्रोजेक्ट का वो भी कुछ कुछ दिनों में छोड़ के चले जा रहे हैं, या फिर इसमें से एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह की शर्तें कमिटी ऑफ क्रेडिट पास कर देता है कि भाई पिछले लोगों को पैसे नहीं दिए जाएंगे, और अगर वो निकलना चाहते हैं तो 20% हेयर कट लेकर जाएं, 30% हेयर कट लेकर जाएं। तो ये सेक्शन 8 की और प्रोजेक्ट अंडर सीआईआरपी मतलब जो इंसॉल्वेंसी में उनकी भी लिस्ट आपको रेरा के पोर्टल पे मिल सकती है। और अगर ज़्यादा जानकारी करनी है तो इसकी जानकारी आप गूगल पे भी डाल के कर सकते हैं जनरल सर्च टर्म्स के साथ। और अगर स्पेसिफिक चाहिए कि किस केस में चल रहा है ये सब, तो IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया उसकी वेबसाइट पर भी मिल जाता है, और नेशनल कंपनीज लॉ ट्राइब्यूनल की वेबसाइट पर भी आपको CIRP की प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इस समय जिसमें स्वामी फंड चल रहा है,
सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो यहाँ पर भी यही शर्त है, अगर आप इस प्रोजेक्ट में एक बार चले गए, स्वामी फंड जिसको मिला हुआ है, तो उससे निकलना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो फंड कम पड़ जाए, प्रोजेक्ट बने ना बने कल। कोई भी प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, भले उसको कहीं से भी फंड मिल रहा हो, इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, बी इट नोएडा और बी इट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हालांकि नोएडा में डिफॉल्टर्स ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली, बट द एक्सपीरियंस टेल्स कि भाई डिफॉल्टर्स तो सभी जगह हैं, सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, और जहाँ जहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो हमें लेनी होती है। अब अगला एक टॉपिक आता है, ये तो अभी तक बात हो गई थी कि फ्रेश प्रॉपर्टीज जो थी, अगला आता है व्हेन परचेजिंग अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी फ्रॉम बिल्डर। तो जब रेडी टू मूव इन मतलब कि अब प्रोजेक्ट खड़ा हो चुका है और कंप्लीशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस प्रोजेक्ट को मिल चुका है, तो जो पिछली हमने सारी चीज़ें चेक करी वो तो करना मस्ट है ही है, क्योंकि अगर कंप्लीशन मिलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जिसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है वो डॉक्यूमेंट या सैंक्शन उसको इलीगल तरीके से मिला हो, जिसका कि सबसे बड़ा एग्जांपल है एमरल्ड प्रोजेक्ट सुपरटेक का, जो ट्विन टावर्स वाला केस है, कि उसको सारे सैंक्शन मिल चुके थे और वो बिल्डिंग खड़ी भी हो गई, और हाईकोर्ट जा करके उसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया गया और उसमें फिर उसको गिराया गया। इसी तरीके से गुड़गांव का भी एक एग्जाम्पल है, गुड़गांव ट्राइडेंट, गुड़गांव का जो एक प्रोजेक्ट है उसमें भी ऐसा ही हुआ, नाम याद आएगा, आई जस्ट गेट बैक टू दैट। तो इस तरीके से पिछली जितनी चीज़ें आप अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से चेक करिए, हो सके तो भाई किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएं डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट में जाएं, उसमें इंश्योर करें कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। मतलब रेडी टू मूव इन का मतलब नोएडा में ये नहीं है कि कंप्लीशन मिल ही गया, और रेडी टू मूव इन का मतलब है ढांचा खड़ा है, बिल्डिंग खड़ी है, प्लास्टर है, पेंट है, जैसे इसमें वो लेकिन हो सकता है कि रजिस्ट्री ना हो रही हो या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी ना मिला हो, और उनका ये कहना हो कि बॉस हमने डीम्ड ओसी ले लिया है, क्योंकि लॉ में एक प्रोविजन ये भी है कि अगर 3 महीने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसको डीम्ड माना जाएगा और ऐसे सिचुएशन में घर को बेचा जा सकता है। तो आपने सोचे, मतलब लोग सोच सकते हैं कि भाई इन ऑल एस्पेक्ट द बिल्डिंग लुक्स टू बी कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड, अभी सस्ती है ले लेते हैं, पर फ्यूचर में अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं मिलता है तो अगेन मॉर्गेज का प्रॉब्लम और फुल एंजॉयमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। और एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी हम लोगों ने कोट किया है, एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन आरवी प्रसन्ना कुमार एंड अदर्स वर्सेस मंत्री कैसल्स प्राइवेट लिमिटेड, 2023 का ही केस है, जिसमें कहा गया है दैट पोजीशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर प्रायर टू ऑब्टेनिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो ये तो लॉ है ही है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं पोजीशन दिया जाना चाहिए। और अगर आप ले भी लेते हैं, मान लेते हैं, तो उसके शॉर्टकमिंग्स क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो आपके घर में भाई अगर कोई भी उसकी लिफ्ट परमिटेड नहीं है, लिफ्ट भी इसका मतलब गलत लगी है, घर भी गलत है, गलत नहीं है मतलब अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, तो अगर आपने जनरल इंश्योरेंस अपने घर का करा लिया, इंश्योरेंस तो मिल जाएगा, लिफ्ट गलत थी, हाँ, कल को अगर कोई भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी इवेंट होता है, डिजास्टर होता है, घर में आग लग जाती है, कुछ भी होता है, राइट टू लाइफ प्रॉपर्टी कुछ भी होता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज डिनाई कर सकती हैं कि, क्योंकि हर इंश्योरेंस में एक ये होता है कि आप इसको, इस स्कीम का मतलब, इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एडवेंचरस एक्टिविटी में लग जाएं या नेग्लिजेंट एक्ट करने लगे। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना बिल्डिंग में रहना मतलब कि द पर्सन इज एक्टिंग नेग्लिजेंटली, वो नेग्लिजेंट है अपने राइट्स को लेकर के, वो नेग्लिजेंट है लॉ को लेकर के। तो अगर उस बिल्डिंग की लिफ्ट की वजह से आपको चोट, किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, या मतलब कोई भी इंश्योरेंस लॉस होता है, ये सब चीज़ें तो हो सक मतलब इंश्योरेंस कंपनी तो बिल्कुल ही नहीं देगी, गवर्नमेंट तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कुछ भी दे सकती है, या कल को अनफॉर्चुनेटली कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, भूकंप आता है, तो सबको कंपनसेशन क्या इंश्योरेंस कंपनी देगी, वो बिल्कुल डिनाई कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये असर आ सकता है। रही बात कि क्या इन बिल्डिंग से लोगों को निकाला जा सकता है अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसके ऊपर अलग अलग लॉज हैं। कैंपा कोला का केस आप लोगों को पता होगा कि भाई
ऑक्यूपेंसी अगर नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब है बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो लीगल इन्फर्मिटी है ही है. सो एंड दैट लीगल इन्फर्मिटी कैन बी क्योर्ड एट एनी टाइम बाय द कोर्ट्स, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑक्यूपेंसी ना दे करके पब्लिक में तो एक ये इन्फॉर्मेशन दे ही रखी गई थी. अब उसके बाद हम अपने रिस्क पे और अपने नेग्लिजेंस पे उस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, तो फ्यूचर में डिमोलिशन के ऑर्डर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. हो सकता है आपको गवर्नमेंट कंपनसेशन दे दे, कंपनी पर एफआईआर कराए, उसको दिवालिया करे, उसके सारे एसेट्स को सेल के आप करके पैसे दे, जो भी है, बट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. अब एक प्रोविजन आता है, मैंने पहले बात किया, डीम्ड ओसीसीसी एंड पार्शियल ओसीसीसी. तो प्रॉपर्टी खरीदते समय एजेंट्स अक्सर ये बताएंगे कि भाई ये है. तो ये डीम्ड ओसीसीसी के लिए एक यूपी रेरा ने ऑफिस ऑर्डर निकाला था 16/9/2019 को, जिसमें उसने कहा कि अगर बिल्डर के पास, पॉइंट सी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सर्टिफिकेट है, लाइफ लिफ्ट का इंस्टॉलेशन और सेफ्टी सर्टिफिकेट है, और इन डॉक्यूमेंट्स के बाद बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अथॉरिटी में एप्लीकेशन लगाई है, और उसका डिनायल 3 महीने के अंदर नहीं किया गया अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको डीम्ड ओसीसीसी माना जाएगा या पार्शियल ओसीसीसी माना जाएगा, और इसके बेसिस पे बिल्डर ऑफर कर सकता है पोजीशन, और ऑफर पोजीशन करने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं. बट अगेन, अब ये इसके बेसिस पर अगर हम लोग पोजीशन लेते हैं तो रजिस्ट्री होगी कि नहीं होगी, इस बात के लिए रेरा भी गारंटी नहीं कर सकता. तो सिचुएशन वही रहेगी कि आपने पोजीशन ले लिया है, इन सर्टिफिकेट्स की वजह से आपके पास आपका जो नेग्लिजेंट एक्ट है वो जरूर दुरुस्त हो जाएगा, बाकी क्या चीजें सही होंगी इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर रजिस्ट्री नहीं होगी. अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या जो अभी अथॉरिटीज का यहाँ पे चल रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल करा लेते हैं, मतलब बिल्डर बिना एग्रीमेंट टू सेल के नहीं देगा, तो एग्रीमेंट टू सेल की रजिस्ट्री जो वो करते हैं, तो उससे जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, वो सारा स्टैम्प ड्यूटी जो उसको लेना था वो ले लेती है, और बाकी आपको बिल्डर के साथ वाले डिस्प्यूट में छोड़ देती है. एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट गिव यू और कन्फर यू अ कंप्लीट राइट ऑन दैट प्रॉपर्टी, इट जस्ट गिव्स अ प्रॉमिस कि फ्यूचर में जब भी जो है अथॉरिटी एग्जीक्यूट करेगी तो ये प्रॉपर्टी मैं बिल्डर सिर्फ आपके ही नाम पे रजिस्टर कराऊंगा और किसी के नाम पे नहीं कराऊंगा. दूसरी क्या इससे गारंटी एडवांटेज मिलता है एग्रीमेंट टू सेल जो अभी करंटली यूपी गवर्नमेंट कराती है, वो ये है कि उसके ऊपर और किसी का कोई राइट नहीं है, ये इंश्योर हो जाता है. अब एक अगला इशू आता है सब्सिक्वेंट परचेज ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रीसेल. तो अगर आप सब्सिक्वेंट मतलब कि डायरेक्ट बिल्डर से ना खरीद करके किसी और आदमी से खरीद रहे हैं जिसके पास पहले से प्रॉपर्टी है, और आपको लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी हैज रीच्ड क्लोजर टू द कंप्लीशन, तो उस समय अगर आप करते हैं तब भी आपको वो सारी चीज़ें चेक करनी है जो पहले चेक किया है. बस यहाँ पे मैं प्रोसेस आपको बता सकता हूँ. तो ऐसे में प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले कि बिल्डर एक अपना कट लेता है. एग्रीमेंट में आप देख सकते हैं कि क्या फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है या नहीं, अगर फ्री नहीं है तो बिल्डर भी 100 से 500 रुपये, 1000 रुपये, कुछ भी स्क्वायर फीट ट्रांसफर चार्जेस के नाम पे ले सकते हैं. नया बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी बिल्डर आपको बना करके दे सकता है, और अगर उसका प्रोजेक्ट टाइम पे चल रहा है तो हो सकता है वो पिछले वाले ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट को एंडोर्स कर दे, अपनी स्टैंप लगा के साइन कर देगा कि हाँ ये ट्रांसफर मैंने एक्सेप्ट किया, और एक लेटर ले लेगा ट्रांसफर का. और ये दो चीज़ें हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, और जब तक कि बिल्डर के कंट्रोल में है. अंडर कंस्ट्रक्शन से मेरा मतलब है अभी उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो आपको ये दो प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं. फिर अगला एक टॉपिक कवर करने की कोशिश किया हम लोगों ने, परचेजिंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एन इंडिविजुअल सेलर. तो अब यहाँ पे हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस बायर के नाम पर, वो अपार्टमेंट भी हो सकता है और कोठी भी हो सकती है. तो इसमें आपको जो चीज़ें चेक करनी होती हैं वो है टाइटल डीड, सेल डीड, मतलब जो पिछले सेल डीड, जो मतलब पिछला लीज डीड है उसका, उस ओनर का, वो आपको उसकी फोटोकॉपी लेना चाहिए उससे. उस फोटोकॉपी की मदद से आप फिर एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करते हैं, और इन डॉक्यूमेंट की मदद से आप अथॉरिटी में जा करके उस प्रॉपर्टी के प्रीवियस पेपर्स चेक कर सकते हैं.
और म्यूटेशन रिकॉर्ड चेक करेंगे तहसील से 12 साल का, और इसके ऊपर क्या कोई चार्जेस वगैरह है या नहीं है, ये भी अथॉरिटी से और तहसील से चेक होते हैं। अथॉरिटी से क्यों चेक होते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी लीज पर है, तो कोई भी अगर चार्ज क्रिएट है तो उसका रिकॉर्ड अथॉरिटी पे ज़रूर होता है। और इसके ही साथ-साथ वहाँ पर ये भी आपको एक चीज़ देखनी है कि आप जब आपको अगर पता चलता है कि ये मल्टीपल लोगों के नाम पे ये प्रॉपर्टी थी, जैसे कि किसी के एंसेस्टर्स एक्सपायर हो गए, फादर एक्सपायर हो गए और उस प्रॉपर्टी के 3 लोग हैं और अब वो इस सिटी में नहीं रहते, सब बाहर रहते हैं, तो ऐसे लोग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बेच रहे हैं अथवा सिटीज़ इन सिटीज़ में। तो अगर उनकी प्रॉपर्टी लेनी है तो जितने भी लीगल हेयर्स हैं सक्सेशन लाइन में, उन सबका आपको एनओसी भी लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक्स्ट्रा कॉशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे मेंशन किया है हमने, इशू अ पब्लिक नोटिस इन एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, कि मतलब आप एक प्रॉपर्टी जिसका एड्रेस ये है और इस प्रॉपर्टी के फला फला अपने आप को मालिक बता रहे हैं, स्वामी बता रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी को मैं अगले 2 महीने में एग्रीमेंट टू सेल के जरिए खरीद रहा हूँ। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेज कर सकता है। इसको 2 लोकल न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में देने से आपका जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है वो बेटर होगा, और आगे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू विल हैव अ बेटर केस। फिर आपको टू रिक्वायर द आर्किटेक्ट ऑफ द परचेजर टू असर्टेन वेदर द लैंड इज अंडर सेटबैक और रिजर्वेशन। तो एक चीज दूसरा होता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं लैंड पर, तो आप एक आर्किटेक्ट से भी सर्टिफिकेट लीजिए कि क्या इसका नक्शा नोएडा अथॉरिटी के रेगुलेशंस के हिसाब से बना है कि नहीं, और नोएडा अथॉरिटी में भी मैप का नक्शा निकाल लीजिए और देखिए कितने डेविएशंस है। और फिजिकल इंस्पेक्शन तो करना ही करना है प्रॉपर्टी का, और साथ साथ आपको फिजिकल इंस्पेक्शन मतलब चारों तरफ से आपको देखना चाहिए, अंदर भी देखना चाहिए, और साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटी है उसमें कितने इसके पेपर्स हैं वो सब। अब आते हैं कि जब आप सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस पर क्या क्या चार्जेस एडिशनल लगते हैं नोएडा में, तो वो है सेलिंग प्राइस तो है ही है, उसके साथ स्टैम्प ड्यूटी ऐड होगा, उस पर टीएम चार्जेस इंक्लूड होंगे, यानी कि ट्रांसफर मेमोरेंडम इसको बोलते हैं, जो कि आमतौर पे 2.5% होता है, ये ऐड होता है, प्लस ईओए के चार्जेस या सोसाइटी के चार्जेस ऐड होते हैं, जो कि अमूमन 0.5% होते हैं। तो ये 3 एडिशनल चार्जेस हैं इस सिटी में। 3 एडिशनल नहीं, 2 एडिशनल कहूँगा। स्टैम्प ड्यूटी तो पूरे कंट्री में ही लगता है, और नोएडा में ये इन अथॉरिटीज़ और नोएडा में टीएम चार्जेस एक एडिशनल चार्ज है, जो कि 2.5% होता है और कुछ सेक्टर्स में फिक्स भी हो सकता है। एक ये स्लाइड बनाई थी, टाइटल और ओनरशिप में क्या फर्क है, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। टाइटल इज अ बेटर राइट एंड ओनरशिप इज अ राइट बिटवीन यू एंड द प्रीवियस बायर। आप इसको एनफोर्स करा सकते हैं ओनरशिप को, पर उसके लिए आपको सेकेंडरी एविडेंस चाहिए होगा। टाइटल साबित करने के लिए जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड डीड है दैट इज सफिशिएंट। तो ये रही सारी चीजें। अब अगर हमें रेरा की वेबसाइट को आप क्या रेरा की वेबसाइट के थ्रू आप समझना चाहेंगे, मतलब इफ टाइम परमिट्स? नहीं, वो तो प्रशांत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी आप बोल रहे हैं। मैं तो उनके लिए सोच रहा हूँ जो लोग ये मिस कर रहे हैं आ गया। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन। क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी शरद जी। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रशांत जी। आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि आपके किसी भी सेशन में आई कैन पुल एज मेनी एज पीपल आई कैन, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा वो लास्ट मिनट में ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, वरना आई वुड हैव पुल्ड एटलीस्ट 10 15 एक्चुअली 20 हाँ, वो जो है दैट वाज ओनली एज अ स्टेटस, तो शायद हम सबको लिंक भी नहीं भेज पाए, प्रमोट भी नहीं किया। इट वाज जस्ट पुट इन डे बिफोर यस्टरडे। हाँ हाँ तो थोड़ा सा क्या नाम है, विद इन फ्यूचर वी विल एंश्योर कि और लोग भी आए। तो मैं हाँ तो बस देखना चाहता था, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, आज मैंने पहली बार इसको किया था। नहीं, तो बहुत अच्छा रहा। इफ यू अलाउ, कैन आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस? हाँ जी श्योर। बस एक तो सिंपल सा ये था जो लास्ट में आपने कवर किया, जैसे कि अगर सेलर से खरीद रहे हैं और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है और फ्लैट है, तो जैसे आपने 2 3 पॉइंट्स बताए, उसमें से कुछ शायद लैंड से रिलेटेड भी थे, बट जो आपने वो कहा कि जैसे बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए, क्लियरेंसेज होनी चाहिए और कोई ड्यूज नहीं होना चाहिए, तो अगर रजिस्टर्ड फ्लैट है तो फिर क्या फिर भी क्या रिस्क रह जाता है
अगर एक दो नहीं पॉइंट। देखिए, अगर रजिस्टर्ड फ्लैट है पहले से तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि वो रजिस्टर्ड है और एक अपार्टमेंट प्रेमाइसिस में है, राइट? हाँ हाँ तो उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं आपको, वो तो क्लियर ही टाइटल मिलेगा आपको। और हाँ जो हाँ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन है वहां पर आप अपनी एडिशनल फीस वगैरह दे करके सारे पेपर्स भी ले सकते हैं, और 0.5% तो उन्हें देना ही देना है। और अगर राइट पिछले कोई ड्यूज हैं तो वो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो वो जरूर पूछना है कि पिछले ड्यूज कितने हैं इनके इस फ्लैट पर। तो वो आप अपना बायर से बात करके, उस सेलर से बात करके उससे कि भाई ये ड्यूज तो आप ही ने पे करने हैं, हाँ मतलब हाँ द सेलर हैज टू। वो भी क्लियर है। तो इसका मतलब ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो है ना, क्योंकि बिल्कुल, फिर हाँ हमें। मतलब अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को तो इन्वॉल्व रखना ही रखना है। राइट राइट। और जैसे दूसरा आपने पॉइंट बताया, कुछ एटीएस के रेगुलेशंस हैं बिल्डर और बायर के बीच में, क्या ऐसी ही कुछ फॉर्मेट्स हैं रीसेल के, उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड नहीं, फॉर्मेट्स हैं जो। रीसेल में तो नहीं है, रीसेल को अभी नहीं रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। तो अच्छा अच्छा उसका तो वही जो पिछले क्या नाम है, पिछले वाले सारे टर्म्स तो अगले में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नोएडा है तो यहाँ पर जो लीज के टर्म्स होते हैं वो स्टैंडर्ड ही होते हैं। अच्छा अच्छा ओके। तो तो क्योंकि वो जो लीज है ना वो अप्रूव होगी टीएम में। हाँ राइट, वो टीएम वाला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि बैंक जैसे अपनी बैंक से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि लीगल मैं चेक कर लूंगा कि टाइटल क्लियर है कि नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज हैं वो सब टीएम के टाइम पे चेक होगी। तो बैंक आजकल बड़ी जल्दी अप्रूव कर दे रहा है, 10-15 दिन में क्विकली चेक किया ऑनलाइन और वगैरह, ओरिजिनल वेरीफाई कर दिए और फ्री हो गए। जबकि नो ड्यूज बाकी हैं एओए वगैरह के मतलब उसके सेलर के। तो जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा भाई फाइनेंशियल जो है वो टीएम पे चेक होगा, हम लीगल और टाइटल चेक कर लेते हैं बस। तो ये हाँ, मुझे। इसमें बैंक वाले एस्पेक्ट को भी मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा कि बैंक हाँ, के तो ऊपर बैंक ना की जाए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैंने तो हाँ, उनको काफी घेरा, तब उन्होंने कहा कि नहीं आप सही कह रहे हैं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और हम भी लर्न कर रहे हैं। उसने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा आपके भरोसे हम आगे बढ़े और आप कह रहे हो अब बस आपने लीगल चेक कर लिया, नोटिस वोटिस आपने कुछ चेक नहीं किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है एक। तो बैंक का, हाँ बैंक वाला तो एक इशू रहता है। जस्ट बिकॉज बैंक इज फाइनेंसिंग दैट डज नॉट मीन कि जो है द प्रोजेक्ट इज 100% लीगल। हाँ एग्जैक्टली हाँ, या बैंक के भरोसे ना रहिए, अपना भी हाथ चलाइए। हाँ सही बात है, वही तो मुझे लर्निंग हुई। पांचवा पॉइंट आपने जैसे एटीएस रजिस्ट्रेशन का बताया, तो मुझे ये पता चला है कि एटीएस अगर हम रजिस्टर कर लें तो जो उसमें एक्सपेंसेस हैं वो फाइनल रजिस्ट्री से एडजस्ट हो जाते हैं, मान लीजिए, राइट? करेक्ट मतलब करेक्ट, हाँ 50। बिल्कुल बिल्कुल। इज दैट करेक्ट? हाँ, करेक्ट अच्छा। करेक्ट, वो एडजस्ट होगा। और इट इज रिकमेंडेड कि हम एटीएस जो सेलर के साथ कर रहे हैं वो रजिस्टर कराएं, इज दैट ट्रू? हाँ, उसको रजिस्टर कराएंगे तभी, अगर कल वो सेलर पीछे हटता है आपसे तो आप उसको जो है एनफोर्स करा सकते हैं उस एटीएस को। अच्छा अच्छा ओके। तो वरना वो एनफोर्स नहीं ऑलवेज कर रिकमेंडेड है पाएगा। इसका मतलब। हम्म। ठीक है, और कोई क्वेश्चन योगेश जी, राजेंद्र जी, संकल्प, क्षितिज? मेरे क्वेश्चन तो आप टाइम टाइम क्लियर करते रहते हैं जब आपसे पर्सनल मिलता हूं तो। सो एनी फीडबैक कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सके, सो दैट मोर पीपल कैन कम एंड ज्वाइन एंड वी कैन create more informed society where the frauds and misrepresentations are less, और लोग उसको बिना लीगल में पैसा खर्च किए हुए एटलीस्ट घर खरीदते समय तो उसको लीगल पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। So only objective is कि भाई सबको पता रहे, क्योंकि कानून तो एक ऐसी चीज है जो सबको पता होना चाहिए। राइट। नहीं मेरे Rightly ख्याल से। said. हाँ, आज आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा कि तीन जो सिनेरियोज हैं उसमें फर्स्ट सिनेरियो वाज मोर एम्फेसाइज्ड, जो हम बिल्डर से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं, जैसे मेरे ख्याल से 90 मिनट्स में से 65 मिनट्स शायद उसमें थे और 10-15 मिनट्स वगैरह रीसेल। तो अगर आप नेक्स्ट में कुछ रीसेल स्पेसिफिक चीजें और डिटेल में कवर करेंगे तो और भी अच्छा होगा, मतलब दैट्स माय पर्सनल इंटरेस्ट, बट श्योर बेस्ड श्योर। ऑन योर अवेलेबिलिटी एंड। हाँ, इसको एक्चुअली वही है ना कि वो पहले वाला तो सब उसमें ऐड हो जाता है। हाँ 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 हाँ, रीसेल को फिर उसमें आगे बढ़ाते हैं जी। राइट। जैसे बड़े कॉमन से क्वेश्चंस आते हैं हम बायर्स में, जैसे जब हम एटीएस कर रहे हैं तो जो विटनेसेस हैं
वो हमें क्या दोनों तरफ से एटलीस्ट एक एक इंश्योर करना चाहिए, या एज ए बायर सेफ्टी हमें दोनों विटनेस अपने रखने चाहिए? कल की डेट में ये ना हो कि भाई बायर के दोनों विटनेस थे इसलिए उन्होंने वो ऐसा तो ऐसा स्टेटमेंट है, दिया। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 विटनेस की, आप उसको 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, तो 2 दोनों तरफ से रख सकते हैं, देयर इज नो हार्म। बट रेशियो क्या होना चाहिए? क्या हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सेलर की तरफ से भी एक विटनेस जरूर हो, 2 या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, कोई फैमिली का नहीं होना चाहिए। विटनेस का ये रूल है कि कोई फैमिली वाला ना हो, इट शुड अच्छा, बी एन इंडिपेंडेंट विटनेस। या ओके, और बेटर है कि दोनों तरफ से हो, राइट? बेटर है दोनों तरफ से हो, 2 की जगह 3 हो तो और बेटर है, 4 हो तो और बेटर है। ओके ओके। ठीक है फिर, दैट वाज सो काइंड ऑफ few people to have joined this session and not letting it go, you know, abandoned या फिर postpone नहीं करना पड़ा मुझे, एटलीस्ट आप लोग आए। और होपफुली आई मतलब कि और बेटर टॉपिक्स के साथ वी विल ट्राई टू कवर दीज सैटरडेज, और आप लोगों की हेल्प से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होके और एक बेटर और मोर इन्फॉर्म्ड यू नो लीगल सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने लॉस से अवेयर जब होते हैं तभी फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और समाज में चीटिंग वगैरह और मतलब जितनी भी लीगल एक्ट्स होते हैं ये कम होते हैं। So that is my only intention and purpose of hosting these free sessions. Otherwise, Thank you so much, Prashant ji. At least people will motivate and they will be more aware. Like we know, then we can pass this movement to others, and they can also be aware. sure. थैंक यू सर, थैंक यू प्रशांत फॉर अ काफी अच्छा ब्यूटीफुल सेशन था। सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you to Thank you so everyone. much, प्रशांत जी। Thank you. Good day.